In that case, if the isotopes attached to the steric center, in that case the priority is based on a atomic mass number. तो देखो यहाँ पे in case if the steric center is attached with the tritium and deuterium, so in that case the higher priority is given to the tritium compared to that of the deuterium. आए ये समझ में आपके? यस सर। है ना? थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल भी देखा था हमने. If both the atoms attached to the steric center is same, ग्रुप अलग अलग रहेगा. इसके पहले ही हमने बोला था the criteria for the geometrical isomerism in alkene. To show the geometrical isomerism in alkene, the double bonded atom should have the two different group. They are not a similar. If they are the similar, means that compound is not a geometrical isomers. So if we call any compound that is show the geometrical isomerism, definitely containing the two groups, है ना? But in some cases the atom attached to the double bonded carbon atom or steric center is same. So in that case the priority is given to the next, that is consider the next atom or group until we reach a point of a differences. हमको कहाँ तक का जाना है वहां पर, उसको जहाँ तक हमको ना कुछ डिफरेंस नहीं मिलता है वहां तक जाना है हमको. And that difference is based on an atomic number. For example, we assign the higher priority to the ethyl group. We assign the higher priority to the ethyl group than the मिथिल ग्रुप, है ना? देखो यहाँ पे मिथिल ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल ये अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम और ये भी, तो इन मिथिल ग्रुप देयर आर द इन फर्स्ट कॉलम में तो सेम ही है. फर्स्ट ये स्फीयर में क्या है? सेम है. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द सेकंड कॉलम. सेकंड कॉलम में देखो हमको डिफरेंस मिल रहा है. यहाँ पे तीनों भी हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है. दैट्स व्हाई इट हैविंग द हायर प्रायोरिटी. दैट्स व्हाई द इथिल हैविंग द हायर प्रायोरिटी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द मिथिल. ये रूल समझ में आ गया आपको? ये रूल समझ में आया आप लोगों को? यस सर. यस सर. यस. हाँ, देख लो यहाँ पर here this is the geometrical isomers or not? ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है? Yes sir, geometrical isomer. Because all the two different group attached to the double bonded carbon atom. Here also the two different group attached to the double bonded carbon atom. That's why this compound show the geometrical isomerism. One is the Z and second one is the E, or one is the cis and second one is the trans. But we are not able to assign the Z, cis and trans because all the 4 different group attached to the double bonded carbon atom. That's why we have to follow the CIP rule. So CIP rule first says that the atom that attached to the double bonded carbon atom is assigned the priority, and this priority is based on an atomic number. But here both the carbon atom, यहाँ पे भी carbon atom है और यहाँ पर भी क्या है? carbon atom attach है उसको, तो same atomic number. फिर है ना बोले तो फिर ये first rule not applicable here. Second rule says that if they are the isotope, then the atomic mass that having the higher atomic mass having the higher priority. तो ये isotope है क्या ये? नो. नहीं. No, तो फिर हम ये second rule भी हमको applicable नहीं है. But third rule says that if the key atom that is attached to the double bonded carbon atom is same, then priority goes to the next atom until we find the difference, until we find a difference. तो देख लो अभी यहाँ पर देखो ये मिथिल ग्रुप है. ये मिथिल ग्रुप को हम कैसे इसको सेपरेट करेंगे? ये की कार्बन एटम है. ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये की कार्बन एटम है. इसका भी ये इधर से ये है और इसका नीचे का ये कार्बन एटम है, की कार्बन एटम. तो हमको फर्स्ट कॉलम में ना कुछ भी डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एटम एंड ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना? यहाँ पर भी 1 2 3 और ये कार्बन एटम भी 3 ग्रुप को अटैच है, 1 2 और 3. अभी देखो यहाँ पर है ना तीनों भी क्या है? मिथिल हाइड्रोजन ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम? ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. तो इस सेकंड कॉलम में क्या है? तीनों भी हाइड्रोजन. और नाउ इन केस ऑफ द इथिल,
तो यहाँ पे इथिल में बोलो ये कार्बन आइटम को कौन क्या क्या अटैच है, बोलो मुझे। दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। कार्बन और 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो फिर ये सेकंड कॉलम में डिफरेंस आया हमको नजर? यस सर। तो विच वन हैविंग द हायर प्रायोरिटी? इथाइल ग्रुप। Ethyl having the Ethyl group, higher ethyl group. priority. That's why we assign the number 1 to this and to the second to the this. Now with the case of this carbon atom attached to the double bonded carbon atom and carbon atom attached to the double bonded carbon. Here also the case, this each carbon atom bonded with 3 group. तो ये 3 group के ना ये attachment निकाल लेने का, इसका भी तीनों का निकाल लेने का यहाँ पर। Now here this carbon atom bonded with how many different atoms? 3. तो कौन से बोलो मुझे? 2 हाइड्रोजन। और एक कार्बन। 2 हाइड्रोजन and 2 हाइड्रोजन और OH ग्रुप। बस ऑक्सीजन ही कंसिडर करो ना, ऑक्सीजन है ना, OH है, वो फिर थर्ड कॉलम में चल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये फर्स्ट कॉलम में कार्बन कार्बन है, इसलिए हमें ना इसकी प्रायोरिटी दे रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे ये कार्बन आइटम कितना कौन से आइटम को अटैच है बोलो? 1 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन। 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। हाँ अभी देखो, अभी डिफरेंस आ रहा है ये दोनों भी कॉलम में? फिर हमको सेकंड कॉलम में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है नजर? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आइटम है, ऑक्सीजन आइटम हैविंग द हायर एटॉमिक नंबर कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बन, दैट्स व्हाई द प्रायोरिटी गोज टू द दिस वन। समझ में आया ये ग्रुप, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? Yes, sir. यस That's सर। why this is the highest first priority and this is the second priority. तो कौन सा ग्रुप हो गया फिर? कौन सा गया? Z है या E है? ये ई E है, करेक्ट। अभी मुझे मैं जिसका नाम लूंगा ना तो मुझे बोलो फिर ये क्या है। फैज शाह, फैज है क्या? फैज शाह। यस सर। 62 रोल। हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। यस सर। हाँ अभी फिर इसको कौन सा, ये सीसी या ट्रांस बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं ना? क्योंकि ना ऑल द 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर डिफरेंट है ना, दैट्स व्हाई वी हैव टू असाइन और फॉलो द CIP रूल टू असाइन द प्रायोरिटी। अभी इसको प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो अभी सब में पहले ना मुझे ये इसका बोलो, ये कार्बन आइटम को विच वन हैविंग द हायर प्रायोरिटी? दिस वन और दिस वन? ऊपर वाला। कैसा बोलो? ये देखो यहाँ पर है ना, ये कार्बन आइटम इन फर्स्ट द एटम अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम इज सेम, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कार्बन आइटम किसको? एक कार्बन को और 2 हाइड्रोजन को, क्योंकि इथिल ग्रुप है ना वो। आए समझ में Yes, sir. आपके? हाँ सर। हाँ यस वेरी गुड। और यहाँ पे क्या ड्यूटेरियम है? दैट्स व्हाई दिस हैविंग द हायर प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई दिस इज प्रायोरिटी द ग्रुप करेक्ट है इनका। फर्स्ट वन। फैज का सभी का बराबर है, बराबर है फैज का। बाकी के लोग क्या किसी का दूसरा अलग आंसर है?
हाँ अभी मुजम्मिल शेख 74। हाँ बोलो, इसमें किसको असाइन करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी बोलो। Yes, sir. इज द फर्स्ट और Yes, सेकंड sir. रूल अप्लीकेबल हियर और थर्ड रूल अप्लीकेबल? मुजम्मिल 74 नंबर Sir, है 74। yes, sir. Hello. हाँ आवाज आ रही बोलो। सर? हाँ, आ रही। सर सेकंड को देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, CH2D। पर है ना वो तुमको जम रहा है ना स्पीयर निकालने का, क्योंकि अब ये हम तो है ना सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं, पर एग्जाम में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आए तो यू शुड एबल टू ड्रॉ द ईच कॉलम। हाँ, इसको कॉलम को डिफरेंस करने का, जैसा देखो यहाँ पर। और यहाँ पर देखो दैट्स व्हाई दिस हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस हैविंग द सेकंड। तो ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी और ये सेकंड प्रायोरिटी। आ गया समझ में? कौन सा हो गया फिर ये? E सर इंटर। Very good. Now draw both the Z and E form. Z and E form of a 2-hydroxy. Sorry, 2-bromo. Sorry. एक बार लिख लो आप। Draw the Z and E form. Just note down. लिख रहे हैं सभी के सभी लोग? Draw the Z and E form of 2-chloro. Sorry. 3-chloro 2-butanol. 3-chloro 2-butanol. Butanol. एक मिनट में लिख लेता हूं और तुम उसका नोट कर लो। यहाँ पर से लिख लो। हाँ, इसका है ना ड्रॉ बोथ द Z एंड E फॉर्म। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, तो ये क्वेश्चन जस्ट ट्राई द Z एंड E फॉर्म ऑफ 3-chloro 2-butene 2-ol। और जो इंटरेस्टेड है बोलो मुझे, मैं आपको है ना ये आपका है ना कैमरा स्टार्ट करके वो फोटो लेके शेयर कर लो या फोटो बता दो उसमें। यस एनीवन? सर आपको शेयर किया है फोटो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे किया के चलेगा? एक मिनट। हाँ, हाँ बराबर है। किसने शेयर किया ये? सर माधुरी। हाँ, तो ये देखो आपने ना जो नीचे का स्ट्रक्चर है ई फॉर्म वो बराबर निकाला है, पर जेड फॉर्म है ना आपने जो मिथिल ग्रुप दिख रहे हैं दोनों भी जो एकदम से स्ट्रेट दिख रहा है, तो ऐसा ड्रॉ नहीं करना है आपको एग्जैक्टली है ना उसमें ऐसा जो आपको जो जैसा नीचे का ड्रॉ किया है ई का वैसा ड्रॉ करना है। समझ में आया आपको? यस सर, वो स्ट्रक्चर समझने के लिए किया था सर। हाँ, नहीं वैसा नहीं ड्रॉ करने का पर एग्जाम है।
चलें। ओके ये देखो इन्होंने किया है, माधुरी ने बराबर से है वो, अरे यार सॉरी, देख लो यहाँ पर 3 क्लोरो 2 ब्यूटीन 2 ऑल। ब्यूटीन बोले तो हाउ मेनी कार्बन आइटम, 4 कार्बन आइटम, 1 2 3 और 4 दिया है यहाँ पे। 2 सेकंड पोजीशन पे क्या है यहाँ पे, अल्कीन ग्रुप है, और यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड पोजीशन पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है यहाँ पे, Cl. क्लोरीन ग्रुप है। नाउ assign the priority, which one having the first priority here, OH OH group having the first priority, this having the second priority, यहाँ पर Cl Cl और क्लोरीन सेकंड, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, Z जूसा में Z. Z, Z, और इसको E फॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, ये कोई भी एक कार्बन आइटम की पोजीशन चेंज कर देने का, इसको इधर शिफ्ट कर देने का और क्लोरीन को इधर हो कर देने का, तो वी गॉट द E फॉर्म। समझ में आया ये कैसे ड्रॉ करते हैं तो, Yes, sir. Now the second most important and last rule of a CIP, in case when a double or triple bonded group attached to the double bond are treated as a multiple bonded atom as an equivalent number singly bonded atom। एक मर्तबा पढ़ लो आप, फिर मैं समझाता हूं इसको। कोई पढ़ेगा इसको, ऋषिकेश बोर्डे, ऋषिकेश, ऋषिकेश है क्या, आप पढ़ो इसको, ये जो आपको नजर आ रहा है ना इसके स्क्रीन पे, ये रूल पढ़ो। In double bond, double and triple bond that are part of group attached to the double bond are treated as multiple bonded atoms, singly bonded atoms. हाँ, ये सभी ने नोट कर लिया, हेलो सभी ने नोट कर लिया ये, अभी देखो, अभी मैं ना ये रूल को समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, और है ना बहुत से बार आता है एक्चुअली ना, एग्जाम में भी बहुत आता है, ये अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आया है तो पूछो मुझे। हियर द रूल सेज दैट, here the rule says that if a multiple bonded atom attached to the steric center, so here we consider it a individual bond, here we are making some changes and considering as a individual bonded atom, है ना। जैसा देख लो, अभी एग्जांपल में ले रहा हूं यहाँ पर,
साक्षी पेठे 52 रोल नंबर, साक्षी है क्या? साक्षी पेठे है? ऋषिकेश रोल नंबर 11, जायसवाल 29 रोल नंबर है क्या प्रेजेंट? Yes, sir. हाँ बोलो, ये ज्योमेट्रिकल इज दिस कंपाउंड इज शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर और नॉट? No, sir. हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को? जैनब शेख, है जैनब शेख है क्या? हाँ है यहाँ पर जैनब शेख? हाँ मुक्तेश्वर है क्या? मुक्तेश्वर 53 रोल नंबर, मुक्तेश्वर पुठेवाड़। चलो forget. Is this compound showing the geometrical isomer or not? Yes, sir. Yes, sir. Showing. What is the reason behind? Because all the two different group attached to the double bonded carbon atom, है ना? और यहाँ पे कितने स्टेरिक सेंटर है? ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सर दो है स्टेरिक सेंटर है क्या? सर। Two है। सर दो है ना? 2, sir. 2. टू किधर कौन से बोलो? सर CH डबल बॉन्ड NH एंड C डबल बॉन्ड CH। C डबल बॉन्ड NH। यस। और ये कौन सा C डबल? ये यहाँ पर है। वेरी गुड, ये बराबर है। दो स्टीरिक सेंटर एक्चुअली यहाँ पर है ना, बराबर बोले आपने। यहाँ पर स्टीरिक सेंटर है क्या? ये स्टीरिक सेंटर है क्या? No. यस करेक्ट, है ना। पर अभी फिलहाल है ना, हमें ना NH2 को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको लास्ट में देखेंगे। हियर जस्ट वी आर कंसीडरिंग दिस ओनली द वन ऑफ द स्टीरिक सेंटर, है ना। हमारे ग्रुप में देखा जाए तो ये भी स्टीरिक सेंटर है। डेफिनेटली द 4 डिफरेंट ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच डबल बॉन्डेड एटम। जैसे देखो यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये जो लोन पेयर कंसिडर करते हैं, इसको लोन पेयर कंसिडर करते हैं, है ना। वो बाद में देखेंगे हम उसको। Now assign the priority. Which one having the first priority? The first rule says that the priority is based on atomic number of the atom that directly attached to the steric center. तो देखो यहाँ पर भी कार्बन एटम है, यहाँ पर भी कार्बन एटम है, इसलिए तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। या दूसरा इधर देख लो, यहाँ पर भी कार्बन एटम है, यहाँ पर भी कार्बन एटम। तो we can't assign the priority by the first rule. फर्स्ट रूल हमको यहाँ पे यूज होता है कि प्रायोरिटी असाइन में? नहीं सर। No, sir. फिर second rule, if the isotope attached, the isotope that having the higher atomic mass number having the higher priority, but यहाँ पे isotope नहीं है, एक ही कार्बन एटम है, तो second rule भी हमको काम नहीं आएगा। अभी third rule says that if the first atom is same, then priority goes to the next atom। पर यहाँ पर क्या है, थोड़ा ना confusion है यहाँ पे second group है ना, बस ये तीनों भी एक ही जगह बॉन्ड है ये कार्बन एटम को, और ये दो कार्बन एटम, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे ना वी कांट अप्लाई द थर्ड रूल आल्सो। थर्ड रूल भी क्या है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड रूल बाद में अप्लाई कर सकते हैं इसको। बट द फोर्थ रूल सेज दैट इफ द मल्टीपल बॉन्डेड एटम अटैच टू द steric center or any atom, so in that make some changes. What that changes? You should consider that one is the individually bonded, that is individually bonded। अभी जैसा देख लो, ये कार्बन एटम है,
अभी देखो ये कार्बन एटम है, ये जो कार्बन, द की कार्बन एटम that attached to the double bonded carbon atom. So how many times bonded with this carbon atom? 3 times. इसको हमें ना इंडिविजुअल times. कंसिडर करने का, इंडिविजुअल कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल कंसिडर करेंगे। एक ये कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम और ये एक कार्बन एटम। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पर भी देखो ये इसको कंसिडर करेंगे, ये जो कार्बन एटम है यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन को और एक कार्बन को। तो फिर किसकी प्रायोरिटी रहेंगी फिर ज्यादा, सब में ज्यादा? First one. First one. That's why this having the first priority and this having the second priority. ये आया समझ में सभी के? Yes, sir. इवन यहाँ पर ये कार्बन एटम भी कितने, देखो ये दिस कार्बन एटम इज आल्सो बॉन्डेड विद 3 टाइम्स विद दिस कार्बन एटम एंड 1 विद हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे ये एक तो हो गया, ये कार्बन एटम, जो ये कार्बन एटम नजर आ रहा है आपको, ये यहाँ पर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम। हाँ, तो ये तो एक हो गया, एक इसके साथ में हो गया एक, और फिर ये 2 3, ये दोनों भी क्या हो गया, एक कार्बन एटम है और क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है। सेम ये कार्बन एटम जो इधर बॉन्डेड है, इसका ये बॉन्ड है, तो ये 2 कार्बन एक हाइड्रोजन। ये इतना तो जानने की जरूरत नहीं गिरी हमको ये एग्जांपल में, पर कोई एग्जांपल में हमको जाना पड़ता है, तो ये दैट शुड यू अंडरस्टैंड। ये समझ में आ गया? नाउ हियर द केस सेकंड, द की एटम, दिस कार्बन एटम, नाउ दिस कार्बन एटम, ये कार्बन एटम 2 times, how many time bonded with a nitrogen atom? 2 times. 2 times. हाँ, इसलिए 2 नाइट्रोजन निकालना है हमको। और ये कार्बन एटम, हियर द 3 hydrogen isotopes are attached. So which one having the first priority? First one. Yes. First one First priority one. is here and this one is the second. तो कौन सा ग्रुप फिर कौन सा हो गया, Z हुआ है या E हुआ है? Z. Red. Z हुआ. Z हुआ ना? Z Yes, means Z Jusamen. means together. Jusamen. Jusamen. Together. ZT means together. Z together है ना? ZC से भी याद कर सकते हैं. Z stand for cis है ना? ZC. उसको कैसे याद कर सकते हैं? आपको यामा की गाड़ी पता है कि यामा की एक गाड़ी थी CBZ, पता है? Yes, sir. हाँ, तो उसपे से याद रखो, ये CBZ होंडा की जो गाड़ी थी ना, तो उसमें से हम ये उठा ले रहे हैं, उसका CBZ, दैट इज cis फॉर Z, CBZ याद रहेगा अभी? Yes, sir. हाँ, ये अच्छे से याद रहेगा। देखो C दैट इज द cis, C स्टैंड फॉर द cis एंड Z फॉर द cis, दैट इज द Jusamen, है ना? Yes, sir. ये देखिए, इसको तो देवा जो एग्जाम्पल, इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ट्राई करो, नहीं समझ में आया तो फिर मैं बता देता हूँ। आया समझ में आपको? No, sir. यस। रिपीट बता।
सर ये ये बता सर देता हूँ, ये हाँ एग्जाम्पल सर, बता देता हूँ। यस सर, ये एग्जांपल। बोलो। हाँ, ये एग्जाम्पल हम देख लेंगे। हाँ? ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है ना आपके? यस सर। जैसे हमको ये पता ही नहीं है। अभी सब में पहले मुझे ये बोलो, क्या ये कंपाउंड है ना? ये है क्या, क्या बोलते हैं उसको? शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Sure. हाउ मेनी स्टीरिक सेंटर इन दिस कंपाउंड? 3. 3 तरह से 3। 3. कौन से बोलो? Sir, 3, sir. 2. एक C डबल बॉन्ड वाला, एक CC। ये एक, CH double CH2. ये भी, Yes, sir. ये दूसरा, और ये भी है। Yes, sir. या बस यही है? बस इतना ही है क्या? Sir, अरे वही लग भाई, रहा है. हाँ Sir, एक्चुअली ये नहीं है। ये नहीं क्यों नहीं है? Yes. देखो यहाँ पे ना, 2 सिमिलर ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो ये One स्टीरिक atom. सेंटर है क्या? नहीं सर. नहीं है। फिर उसके बाद में ये Sir, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी स्टीरिक सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी क्या है, ग्रुप अटैच है, दोनों भी है ना बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ एटम्स है, इसलिए ये है क्या? No, नहीं sir. है, बस यही है। समझ में आ गया आपको? हाँ Yes, sir. हाँ। हाँ, अभी देखो स्टॉप हो जाएंगे इमीडिएटली ना, रिजॉइन द सेम। एक पहले है ना, टाइप किया उसका आपका नाम। Yes, sir. चैट बॉक्स में आपका नाम टाइप किया क्या? Yes, sir. Yes. अभी है ना, मैं एंड कर रहा हूँ, रिजॉइन इमीडिएटली रिजॉइन कर रहा हूँ।